اگر تمہیں لگتا ہے کہ زندگی میں سب کچھ ٹوٹ رہا ہے تو شاید تمہیں یہ دعا سننی چاہیے۔ ہو سکتا ہے آج کی صبح خدا تمہارے لیے کچھ نیا لکھ رہا ہو۔ شاید تمہیں واقعی لگتا ہو کہ آج بھی سب کچھ کل جیسے ہی رہے گا، وہی مسائل، وہی فکریں، وہی بوجھ جو دل پر جمع ہوتے جا رہا ہے۔ لیکن یاد رکھو، ہر صبح صرف روشنی نہیں لاتی بلکہ رحمت کا ایک نیا باب بھی کھولتی ہے۔ کل تم تھک کر سوئے تھے لیکن آج تم زندہ ہو۔ یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ خدا نے تمہیں ابھی تک نہیں چھوڑا۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، اس کی رحمت ہر صبح نئی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کل ٹوٹ گیا تھا وہ آج دوبارہ بن سکتا ہے، جو کل بند تھا وہ آج کھل سکتا ہے، جو کل ناممکن لگ رہا تھا اس پر آج رحمت کا ہاتھ آ سکتا ہے۔ اگر تم اس وقت یہ دعا سن رہے ہو تو اسے بس الفاظ کا سلسلہ مت سمجھو، بلکہ یہ دعا تمہاری روح کے لیے سکون بن سکتی ہے۔ اے عزیزو، یہ وہ لمحہ ہے جہاں زندگی بھاگ رہی ہے لیکن تم رک کر خدا کی طرف دیکھ رہے ہو۔ ایک گہری سانس لو، اپنے سینے کا بوجھ محسوس کرو، پھر دھیرے سے اسے چھوڑ دو۔ زبور میں لکھا ہے، چپ ہو جاؤ اور جانو کہ میں خدا ہوں۔ اس کا مطلب ہے ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش مت کرو، ہر جواب خود سے مت ڈھونڈو۔ کبھی کبھی سکون میں رہنا بھی عبادت ہوتی ہے۔ اپنے دل کو سکون دو، اپنی بے چین سوچوں کو دھیرے دھیرے خدا کے حوالے کرو۔ وہ ذات جو تمہاری ہر خاموش دعا کو بھی سنتی ہے، وہ جو تمہاری آنکھوں کے آنسو گن سکتی ہے، وہ جو تمہارے ٹوٹے ہوئے الفاظ کو بھی سمجھ لیتی ہے۔ بائبل کہتی ہے، اپنا سارا بوجھ اس پر ڈال دو کیونکہ وہ تمہاری فکر کرتا ہے۔ آج اسی کلام پر عمل کرو۔ جو بات تم نے کسی دوست کو نہیں بتائی، جو ڈر تم نے گھر والوں سے چھپایا، جو ٹینشن تم نے مسکراہٹ کے پیچھے چھپا دی، سب اس کے سامنے رکھ دو۔ اے رحمان رب، ہم تیرے حضور جھکتے ہیں، نہ اس لیے کہ ہم مضبوط ہیں بلکہ اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ تو مضبوط ہے۔ نہ اپنی قوت پر فخر کرتے ہیں ہم، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ کبھی ہم گر جاتے ہیں۔ نہ اپنی سمجھ پر ہمیں بھروسہ ہے، کیونکہ کئی بار ہم غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ تیرا کلام کہتا ہے، اپنے دل سے خدا پر بھروسہ رکھ اور اپنی سمجھ پر تکیہ نہ کر۔ آج ہم اس آیت کو اپنی زندگی پر لاگو کرتے ہیں۔ جو کچھ ہمارے پاس ہے، صحت، گھر، سانس، لوگ، سب تیرے دیے ہوئے ہیں، اور جو نہیں ہے، جو ابھی تک ادھورا ہے، وہ بھی تیری رحمت سے مکمل ہو سکتا ہے۔ آج ہم اپنی تھکن تیرے قدموں میں رکھتے ہیں، وہ تھکن جو صرف جسم کی نہیں روح کی بھی ہے، وہ تھکن جو انتظار سے ہوتی ہے۔ اے رب، اپنی بے چین راتوں کو تیرے حوالے کرتے ہیں، وہ راتیں جہاں نیند آنکھوں سے روٹ گئی، وہ لمحہ جہاں دماغ سوالوں سے بھر گیا، وہ وقت جہاں دل نے چپ چاپ آنسو بہائے۔ زبور میں لکھا ہے، رات بھر رونا ہو سکتا ہے لیکن صبح خوشی آتی ہے۔ ہم اس وعدے کو پکڑ لیتے ہیں، چاہے رات لمبی تھی لیکن صبح آ چکی ہے، اور آج اپنی ان فکروں کو جو کسی کو بتائی بھی نہیں، ان ڈروں کو جو الفاظ نہیں بن سکے، ان خوابوں کو جو ٹوٹ کر رہ گئے، سب تیرے سامنے کھول دیتے ہیں۔ نہ کسی سجاوٹ کے ساتھ، نہ کسی بناوٹ کے ساتھ، بس اصلی دل کے ساتھ۔ اے رب، اس لمحے کو مقبول بنا دے، اس رکنے کو رحمت بنا دے، اس دعا کو صرف الفاظ نہ رہنے دے بلکہ ایک نئی شروعات بنا دے۔ اپنی ان فکروں کو جو کسی کو بتائی بھی نہیں تیرے سامنے کھول دیتے ہیں۔ یا رب، کچھ بوجھ ایسے ہوتے ہیں جو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر پاتے۔ لوگ پوچھتے ہیں، سب ٹھیک ہے، اور ہم مسکرا کر کہتے ہیں، ہاں سب ٹھیک ہے، لیکن تو جانتا ہے کہ سب ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو ان دھڑکنوں کو جانتا ہے جو اچانک تیز ہو جاتی ہیں جب ڈر سامنے کھڑا ہو، تو ان آنسوؤں کو سبب جانتا ہے جو رات کو اندھیرے میں تکیے پر گرتے ہیں۔ کتاب مقدس کہتا ہے، خدا نے تیرے آنسو اپنی مسک میں جمع کر لیے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کوئی آنسو ضائع نہیں ہوتا، کوئی تکلیف بیکار نہیں جاتی۔ جو تم چپ چاپ سہ رہے ہو وہ اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہے، تو وہ بھی جانتا ہے جو ہم خود سے بھی چھپاتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم اپنی کمزوریاں تسلیم نہیں کرنا چاہتے، کبھی ہم ڈر کو پلاننگ کا نام دے دیتے ہیں، کبھی ہم مایوسی کو حقیقت کہہ کر قبول کر لیتے ہیں، لیکن تو اصل سچ جانتا ہے۔ یا رب، جس گھر میں سکون اٹھ چکا ہے وہاں اپنی رحمت اتار دے۔ کتنے گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں سب ایک چھت کے نیچے تو رہتے ہیں مگر دل الگ الگ کمروں میں بند ہوتے ہیں، جہاں آوازیں تو ہوتی ہیں لیکن محبت کی گفتگو نہیں ہوتی۔ ایسے گھروں میں اپنے
अपनी रहमत उतार दे, वहाँ लफ्जों में नरमी डाल दे, वहाँ ईगो को हल्का और मोहब्बत को बारी कर दे। या रब, जिस दिल में मायूसी जम चुकी है वहाँ उम्मीद की किरण पैदा कर दे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना इंतजार कर चुके होते हैं कि अब दुआ करने का हौसला भी नहीं बचा होता। उन्हें लगता है कि उनका वक्त कभी नहीं आएगा। हमें हजरत अय्यूब की कहानी याद आती है, जब सब कुछ चला गया, सेहत भी, माल भी, लोग भी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी और आखिरकार खुदा ने उसकी जिंदगी दोबारा आबाद कर दी। या रब, जिस शख्स को लगता है कि उसके लिए सब दरवाजे बंद हो चुके हैं, उसको याद दिला कि तू वो खुदा है जो समुद्रों में भी रास्ता बना देता है। जैसे तूने बनी इसराइल के लिए समुद्र को चीर कर रास्ता निकाला, जहाँ इंसानी नजरों को सिर्फ पानी दिख रहा था, वहां तूने गुजरना मुमकिन बना दिया। आज भी अगर किसी को सिर्फ दीवार नजर आ रही है तो उस दीवार में एक दरवाजा पैदा कर दे। या रब, जो कर्ज के बोझ से झुक गए हैं उनकी गर्दनें फिर से सीधी कर दे। फिर पैसों का कर्ज, एहसान का कर्ज, गुजरे हुए गलत फैसलों का कर्ज, लोगों की उम्मीदों का कर्ज, उन सब का बोझ हल्का कर दे। जो जिस्म से कमजोर हैं उसमें शिफा की रवानी डाल दे। तू वही खुदा है जिसने अंधों को बनाई दी, लंगड़ों को चलाया और मरीजों को छू कर सेहत बख्शी। आज भी तेरा हाथ छोटा नहीं हुआ, आज भी तेरा लम्ज जिंदा है। जो जहन से थक चुका है उसको इत्मीनान अता फरमा। कुछ लोग जिस्म से ठीक होते हैं लेकिन दिमाग सवालों, टेंशनों और ओवर थिंकिंग से बोचाल होता है। नींद होती है मगर आराम नहीं होता। या रब, उन्हें वो सुकून दे जिसका वादा तूने किया है। उनके जहन के तूफान को शांत कर दे, उनके अंदर चलने वाली बहस को खामोश कर दे, उनके दिल को यह एहसास दे कि वो अकेले नहीं हैं। या रब, हर सुनने वाला अपनी कहानी के साथ यहाँ बैठा हुआ है। किसी की कहानी अधूरी है, किसी का सफा फट चुका है, किसी का कल धुंधला है, मगर तू वो मुसन्निफ है जो अधूरी कहानी को मुकम्मल कर सकता है। तू वो लिखने वाला है जो गलतियों को भी रहमत में बदल सकता है। आज हम सब अपनी कहानियां तेरे हवाले करते हैं। ऐ मालिक, हमारी जिंदगी में जो फैसले रुक कर खड़े हैं उन पर अपनी रोशनी डाल दे। तू जानता है कि कुछ डिसीजन सिर्फ चॉइस नहीं होते हैं, वो मुस्तकबिल का रुख तय करते हैं। एक हाँ पूरी जिंदगी बदल देती है, एक गलत कदम सालों का पछतावा बन जाता है। कभी करियर का फैसला, कभी रिश्तों का फैसला, कभी घर छोड़ने का फैसला, कभी वापस लौट आने का फैसला। इंसान बाहर से कॉन्फिडेंट दिख सकता है लेकिन अंदर से डर रहा होता है कि कहीं वो अपनी जिंदगी ना खराब कर दे। ऐ परवरदिगार, जब हम दो रास्तों के दरमियान खड़े होते हैं और दोनों ठीक लगते हैं, तब हमें वो रास्ता दिखा जो सिर्फ आसान ना हो बल्कि हमारे लिए सही हो। तेरी किताब कहती है, अपने पूरे दिल से खुदा पर भरोसा रख, अपनी समझ पर इत्मीनान ना कर, हर राह में उसको याद कर और वो तेरी सीधी राह बनाएगा। हमें अपनी लिमिटेड सोच से ऊपर उठा दे, हमें वो नजर दे जो सिर्फ आज नहीं कल भी देख सके। हमें गलत मोड़ से बचा। कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जो पहले कदम पर खूबसूरत लगते हैं, वहाँ एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है, लेकिन धीरे धीरे वो सुकून छीन लेते हैं। ऐ रब, हमें उस चीज से बचा जो शुरू में फायदा लगे और आखिर में नुकसान बन जाए। हमें उन लोगों से बचा जो मुस्कुराकर करीब आते हैं लेकिन अंदर से तोड़ देते हैं। हमें उन आदतों से बचा जो धीरे धीरे रूह को कमजोर कर देती हैं। तेरी किताब हमें याद दिलाती है, एक रास्ता इंसान को सीधा लगता है लेकिन आखिरकार वो मौत की तरफ ले जाता है। इसलिए हमें हर चमक पर भरोसा करने से रोक दे, हर आवाज को सच समझने से रोक दे, हर दावत को कबूल करने से पहले दिल में तेरा सुकून महसूस करने की आदत दे। हमें जल्दबाजी से बचा। कभी हम सब्र खो देते हैं, हम चाहते हैं कि फौरन जवाब मिल जाए, दरवाजा फौरन खुल जाए, दुआ फौरन कबूल हो जाए, लेकिन जब इंतजार लंबा हो जाता है तो दिल बेचैन हो जाता है और बेचैनी गलत फैसले करवा देती है। रिएक्शन की बजाय रिस्पॉन्स देने का हुनर दे। हमें इतना सब्र दे कि हम वक्त से पहले फल तोड़ने की कोशिश ना करें। याकूब ने सालों तक अपने बेटे यूसुफ का इंतजार किया और आखिरकार जो जुदाई थी वो मिलन में बदल गई। हमें भी वो सब्र दे जो शिकायत में नहीं यकीन में बदल जाए। हम तस्लीम करते हैं, कभी कभी हम कमजोर पड़ जाते हैं, कभी कभी हम पर गुस्सा हावी हो जाता है, एक लफ्ज ज्यादा निकल जाता है, एक मैसेज जल्दी भेज दिया जाता है, एक टोन रिश्ता हिला देती है। फिर बाद में दिल पछताता है, काश मैं चुप रहता, काश मैं नरमी से बात करता। ऐ रब, जब जज्बात उबल रहे हो तब हमें खामोशी का इंतखाब करना सिखा दे। तेरी किताब कहती है, हर शख्स सुनने में तेज, बोलने में धीमा और गुस्से में सुस्त हो। हमें वो इंसान बना जो लफ्जों से मरहम लगाए, ना कि तीर चलाए। कभी हम अल्फाज से जख्म दे देते हैं। जख्म हमेशा हाथ से नहीं लगते, कभी लहजे से लगते हैं, कभी इग्नोर करने से लगते हैं, कभी वक्त ना देने से लगते हैं। ऐ मालिक, हमें ऐसा दिल दे जो दूसरों की तकलीफ महसूस कर सके, हमें ईगो से आजाद कर दे, हमें ये
समझा दे कि जितना हर बार जरूरी नहीं, कभी कभी रिश्ता बचाना ज्यादा जरूरी होता है। हमें माफ फरमा जो हमने जानकर किया, जो अनजाने में कर दिया, जो कह दिया, जो कहना चाहिए था लेकिन नहीं कहा। तेरी रहमत हमारी गलतियों से बड़ी है। तेरे कलाम में लिखा है, अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो वफादार और आदिल है जो हमें माफ करे। हमें नरम मजाज बना। इस सख्त दुनिया में लोग पहले ही थके हुए हैं। हर कोई अपनी जंग लड़ रहा है, हर चेहरा मुस्कुराता है लेकिन हर दिल बोझल है। हमें ऐसा इंसान बना जिसके पास बैठकर लोग हल्का महसूस करें। हमें वो इंसान बना जिससे लोग महफूज महसूस करें। हमारे फैसलों को अपनी हिकमत से जोड़ दे, हमारे अल्फाज को अपनी रहमत से भर दे, और जब लोग हमें देखें तो उन्हें इंसान से ज्यादा तेरी रहमत नजर आए। दुआ करते हैं माँ बाप और औलाद के दरमियान जो फासले बढ़ गए हैं। आज के दौर में एक ही घर में रहकर नस्लें अलग अलग दुनिया में रहती हैं। पेरेंट्स को लगता है बच्चे नहीं समझते, बच्चों को लगता है पेरेंट्स नहीं समझते। ऐ परवरदिगार, दोनों के दरमियान पुल बना दे। माँ बाप को हिकमत दे कि वो सिर्फ हुक्म ना दे बल्कि सुन भी सके। औलाद को नरमी दे कि वो सिर्फ जवाब ना दे बल्कि एहतराम भी करे। तेरा कलाम कहता है अपने बाप और माँ की इज्जत कर, और साथ ये भी लिखा है, ऐ बापो अपनी औलाद को गुस्सा ना दिलाओ। यानी दोनों पर जिम्मेदारियां हैं। ऐ रब, हर घर में ये बैलेंस पैदा कर दे। भाई बहनों के दिलों में जो रंजिश है उसे साफ कर दे। कभी विरासत की वजह से, कभी लफ्जों की वजह से, कभी मुकाबले की वजह से। वो जो बचपन में एक प्लेट से खाते थे, आज एक दूसरे का नाम लेना पसंद नहीं करते हैं। ऐ रब, उन यादों को जिंदा कर दे जो उन्हें जोड़ सकती हैं। उन्हें याद दिला कि खून का रिश्ता सिर्फ लहू का नहीं, रहमत का भी होता है। जहाँ अना है वहाँ आजिज़ी पैदा कर। ऐ रब, हमें अपनी जिंदगी की नेमतों का एहसास दे। हमें दूसरों की कामयाबी देखकर जलने की बजाय दुआ देने वाला बना दे। तेरे कलाम में लिखा है, हर अच्छी और कामिल बख्शिश ऊपर से आती है। जहाँ गुस्सा है वहाँ सब्र पैदा कर दे। गुस्सा आगे छोटी बात से शुरू होता है मगर बड़ा फासला पैदा कर देता है। ऐ रब, जब दिल में आग भड़के तब याद दिला कि एक लफ्ज सब कुछ जला सकता है। हमें रुक कर सांस लेने का हुनर दे। हमें जवाब देने से पहले सोचने की आदत दे। आज हम अपने आप को दोबारा से तेरे हवाले करते हैं, ना सिर्फ जुबान से बल्कि नीयत से, ना सिर्फ दुआ में बल्कि अमल में। यानी अगर माफी मांगनी है तो वाकई मांगेंगे, अगर बात शुरू करनी है तो वाकई करेंगे, अगर बदलना है तो वाकई बदलने की कोशिश करेंगे। सिर्फ सुनने वाले नहीं, कलाम पर अमल करने वाले बनेंगे। हर काम में बरकत दे। जब हम गिरने लगे हमें संभाल ले। कभी गलतियों से गिरते हैं, कभी थकन से, कभी लोगों के रवैयों से। जहाँ लोग समझ ना पाए वहाँ तू समझ ले, जहाँ लोग छोड़ दे वहाँ तू पकड़ ले। जब हम भटकने लगे हमें आवाज दे। कभी इंसान गलत जगह सुकून ढूंढने लगता है, कभी गलत लोगों में तसल्ली, कभी गलत आदतों में खुशी। ऐ रब, अगर हम रास्ते से हटने लगे तो हमें वापस बुला लेना। हमें इतना दूर ना जाने देना कि आवाज सुनाई ही ना दे। हमें ऐसी जिंदगी दे जो सिर्फ गुजरे नहीं बल्कि रोशन हो। रोशन सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी। ज़मीर की रोशनी, सच्चाई की रोशनी, रहमत की रोशनी। हमें ऐसी कामयाबी दे जो सिर्फ पैसा ना हो बल्कि सुकून भी हो। हमें ऐसा मुकाम दे जहाँ से हम दूसरों के लिए आसानी का सबब बन सकें, ना कि लोग हमसे डरें बल्कि लोग हमारे पास आकर महफूज महसूस करें। तेरे कलाम में लिखा है, तुम दुनिया के नूर हो। हमें वो नूर बना दे जो अंधेरों में रास्ता दिखाए। हम यकीन रखते हैं तू सुन रहा है, तू देख रहा है, तू काम कर रहा है। जैसे बीज मिट्टी के नीचे छुप कर उग रहा होता है, वैसे ही शायद हमारी दुआएं भी अभी जमीन के नीचे काम कर रही हैं। इस दुआ को कबूल फरमा, इस दिल को मजबूत कर, इस रूह को रोशन कर। और जब आज का दिन खत्म हो तो हमें ये एहसास हो कि हम तन्हा नहीं हैं बल्कि तू सुबह से लेकर शाम तक हमारे साथ है, हर सोच में, हर कदम में, हर सांस में। ऐ खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं। मेरे अजीजों, अगर आज की दुआ आपको पसंद आई और आपके लिए बरकत का बायस बनी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आमीन लिखकर अपने ईमान की गवाही दें। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।